بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ ہم تاریخ اسلام کے اسباق پڑھ رہے ہیں اور آج سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 6 سال کا ہمارے سامنے غزوہ ہے جسے غزوہ حدیبیہ کہا جاتا ہے۔ اپنے اس سبق کو ہم کچھ حصوں میں پڑھیں گے۔ آج اس کا حصہ اول ہے، لیکن حصہ اول شروع کرنے سے پہلے ہم اپنی عادت اور معمول کے مطابق گزشتہ درس کا خلاصہ پڑھیں گے کہ پچھلے سبق کے اندر ہم نے کیا پڑھا تھا۔ تو ہمارے پچھلے سبق کا عنوان تھا سن 5 ہجری یعنی غزوہ احزاب و خندق کے بعد پیش آنے والے چند متفرق واقعات کا تذکرہ۔ اپنے اس سبق کے اندر ہم نے پڑھا کہ 2 طرح کے معاملات ہیں، ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازدواجی اور خانگی زندگی سے متعلق اور دوسرا ریاست مدینہ سے متعلق۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خانگی زندگی سے متعلق گزشتہ سبق میں ہم نے پڑھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہا سے ہوتا ہے، اور اس نکاح کا شادی کا پس منظر کیا تھا یہ بھی بڑی تفصیل کے ساتھ پڑھا۔ پھر ہم نے پڑھا کہ اسی سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک عقد نکاح حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہوتا ہے، اور اس کا پس منظر کیا تھا، ام حبیبہ کون اور کہاں کی، یہ بھی گزشتہ درس کے اندر ہم نے پڑھ لیا ہے۔ پھر ریاست مدینہ سے متعلقہ جو امور پڑھے اس میں ہم نے ایک غزوہ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ یا غزوہ سیف البحر کے نام سے ہم نے پڑھا، پھر ایک سریہ عکاشہ بن محصن رضی اللہ تعالی عنہ پڑھا، ایک سریہ زید بن حارثہ پڑھا، ایک سریہ محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالی عنہ پڑھا، اور گزشتہ درس کے اندر ہم نے پڑھا کہ داماد رسول حضرت ابو العاص بن ربیع رضی اللہ تعالی عنہ اسلام قبول کرتے ہیں، اور ان کے قبول اسلام کا کیا واقعہ ہے یہ تفصیل سے پچھلے درس میں گزرا۔ پھر ہم نے یہ بھی پڑھا کہ اسی سال یعنی احزاب کے بعد مرتدین کے کچھ قبائل تھے، عقل و رینا، ان کو سزائیں دی گئی، اور یہی وہ سال تھا جب چھاپہ مار کارروائیوں کا اختتام ہو گیا تھا۔ پھر مسلمانوں کی طرف سے قریش مکہ کے تجارتی قافلوں وغیرہ کا تعارض نہیں کیا گیا۔ تو یہ گزشتہ درس کا خلاصہ تھا۔ آج جو ہم غزوہ پڑھنے جا رہے ہیں اس کا نام ہے غزوہ حدیبیہ۔ غزوہ حدیبیہ کے پس منظر کچھ یوں ہے کہ مسلمانوں کو مکہ مکرمہ سے آئے ہوئے اور مدینہ کی طرف آئے ہوئے 6 سال گزر چکے تھے، اور مہاجرین جو مکہ سے آئے تھے ان پر یہ 6 سال مکہ سے جدائی کے لحاظ سے بہت زیادہ شاق تھے کہ مکہ کے اندر ان کے آبائی علاقہ بھی تھا، یادیں بھی تھی، بچپن اور جوانی سارا وہاں گزرا تھا، پھر اس کے اندر حرم مکی بھی تھا، بیت اللہ شریف بھی تھا، اور بھی بہت ساری تعظیم کی چیزیں تھیں۔ لہذا ان ساری کی ساری باتوں کو یاد کر کے مسلمانوں کی مکہ مکرمہ کے بارے میں جو تڑپ تھی وہ اپنی انتہا کو پہنچی ہوئی تھی۔ لیکن یقیناً وہاں قریش مکہ بھی تھے جن کی وجہ سے وہاں جانا، ان سے کوئی معاملہ کرنا بہت زیادہ مشکل ہو جایا کرتا تھا۔ اکا دکا جو مسلمان گئے ان کو بھی بڑی سختیاں اس حوالے سے پیش آئیں، لہذا یہ کوئی عملی جامہ نہیں پہنا رکھ سکتے تھے کہ یہ مکہ کی طرف جائیں اور عمرہ یا حج وغیرہ کر سکیں۔ لیکن ان دنوں کی بات ہے کہ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرات صحابہ کرام کے ساتھ خانہ کعبہ میں داخل ہو رہے ہیں۔ اب حضرات صحابہ کرام کو تو ہی تھا، خدا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خانہ کعبہ کے طواف اور جانے کی، وہاں سے زیارات کرنے کی بہت زیادہ آرزو تھی۔ اب جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خواب آیا تو مزید اس کا محرک ثابت ہوا، مزید تحریک ہوئی، لہذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرہ یعنی زیارت کعبہ کا عزم فرمایا۔ پھر اسی بات کو یعنی مسلمانوں کی روانگی کے ارادے کو کچھ دیگر تائید کرنے والی باتیں، کچھ سپورٹنگ میں باتیں بھی مل گئی، جن میں یہ تھا کہ قریش کے جنگوں سے اکتانے کی امید، اتنی زیادہ پیدر پہ جنگیں ہو گئی تھی، اور قریش معاشی لحاظ سے بھی کوئی ان دنوں بہت زیادہ مضبوط نہیں تھے، تو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور دیگر صحابہ کو امید تھی کہ قریش جنگوں سے تنگ آئے ہوئے ہوں گے، مزید کسی جنگ کا خطرہ مول نہیں لیں گے۔ پھر یہ بھی تھا کہ اگر ہم عمرے کی نیت سے جائیں گے تو قربانی کا جو جانور ہے جسے ہدی کہا جاتا ہے یہ ہمارے سامنے ہوگا، اور ہمیشہ سے ہم دیکھتے آ رہے ہیں کہ قربانی کے جانور کی ہدی کی قریش بہت زیادہ تعظیم کیا کرتے ہیں، اس کا احترام کرتے ہیں، لہذا اس بنیاد پر بھی کہا جا سکتا ہے کہ ہمیں عمرہ کرنے دے دیں گے اور ہمارے سامنے کوئی لڑائی جھگڑے کی نوبت نہیں آئے گی۔ پھر یہ کہ جن مہینوں میں جا رہے تھے وہ بھی شوال کا مہینہ تھا اور آگے ذوالقعدہ کا مہینہ تھا، تو یہ حرمت کے مہینے شمار کیے جاتے ہیں۔
महीने भी हुर्मत के हैं, मकाम भी यानी खाना काबा हरम मक्की ये सारा का सारा हुर्मत का है, इलाका है। तो उम्मीद थी कि किसी तरह की कोई जंग वगैरह नहीं होगी और मुसलमान काबा की जियारत भी करेंगे, उम्रा भी करेंगे और यूं वो सारे के सारे अपने फराइज अंजाम देकर वापस आ जाएंगे। तो इस तरीके से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्वाब देखा और फिर ये सारे के सारे मुसलमान उम्रा के लिए रवाना हो गए। ये ज़िलक़ादा का महीना था, सन 6 हिजरी थी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ 1400 सहाबा थे। तो मदीना से निकले ये हजरात मक्का की जानिब रवाना हो गए। उम्रा का हराम बांधा हुआ था, कुर्बानी के 70 जानवर हमरा थे। तो ये सारी की सारी ये बात बता रहे थे कि हमारा इरादा लड़ाई का नहीं है बल्कि सिर्फ काबतुल्लाह की ज़ियारत और उम्रा का है। लेकिन इसके बावजूद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी भी मामले में एहतियात का पहलू हाथ से जाने नहीं दिया करते थे। इस सफर के दौरान भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही किया और अहवाल जानने के लिए कोशिश की। हुआ कुछ यूं कि जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ुल्हुलैफा में पहुंचे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कबीरा खुज़ा के एक शख्स को जासूस बनाकर रवाना किया और ये इसने जाकर अहवाल वगैरह देखे। फिर मकाम अस्फान में वापस आकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इत्तला दी कि आपकी आमद का कुरैश को भी पता चल गया है, जिसकी वजह से वो जबरदस्त जमीयत मुकाबले के लिए फराहम करके तैयार खड़े हुए हैं और आपको मक्का मुकरमा नहीं जाने देंगे और रास्ते में खड़े हुए हैं। और हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह तआला अन्हु को गोया मुकद्दमा तुम जैश भी दे दिया है, वो आपसे लड़ने के लिए आ रहे हैं। ये हालात देखकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अस्फान से आगे बढ़े और रास्ते से किसी तरफ दाएं तरफ मुड़कर कुछ कतरा कर कुछ गैर मारूफ रास्ता इख्तियार करके वहां से निकल गए और वहां से हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह तआला अन्हु के लश्कर से तारुज और सामना किए बगैर निकल गए, जिसे देखकर कुरैश को मजीद यकीन हो गया कि हाँ ये उम्रा करने के लिए आ रहे हैं, लड़ाई वगैरह इनका कोई इरादा नहीं है। लेकिन इसके बावजूद भी ऐसा नहीं था कि उन्होंने मुसलमानों के लिए रास्ता छोड़ दिया और उम्रा करने की इजाजत दे दी हो। अगरचे मुसलमानों की मुसलसल मक्का की तरफ आमद हो रही थी, लेकिन वो रास्ता खाली करने के लिए, कुफार मुसलमानों को रास्ता देने के लिए, उम्रे की इजाजत देने के लिए किसी तौर पर भी तैयार नहीं थे। मुशरिकीन ने अगरचे लड़ने के लिए ही हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह तआला अन्हु को भेजा था, लेकिन मुसलमानों का तर्ज अमल उन्हें ये पैगाम दे गया था कि लड़ना इस वक्त बिल्कुल मकसूद नहीं है, हम एक खास मकसद के लिए आ रहे हैं, वो हमें अदा करने दिया जाए। इसी तरीके से जब मुसलमान कुछ आगे पहुंचे तो एक जगह पहुंचकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऊँटनी बिल्कुल बैठ गई। लोगों ने उसको, जो जानवर को उठाने के लिए आवाजें वगैरह लगाई जाती हैं, उसको उठाने की कोशिश की। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऊँटनी का नाम कस्वा था, तो लोगों ने कहना शुरू कर दिया खलाअतिल कस्वा, कस्वा ऊँटनी अड़ गई है। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरी ऊँटनी ऐसी नहीं है, न ये अड़ी है और न अड़ना इसकी खसलत में है, बल्कि इसको तो ज़ात बारी तआला ने रोक लिया है, जिसने मक्का में एक मरतबा हाथियों को दाखिल होने से रोक लिया था। तो इसके बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों को ऊँटनी को ज़जर करने से, डांटने धमकाने से रोक दिया। इसके बाद ये हुआ कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बुदैल बिन वर्का खुज़ाई आया और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद का सबब पूछा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि तुम देख रहे नहीं हो कि काफिले के आगे ऊँटों की कतार लगी हुई है और हम एहराम बांधे हुए हैं और हम तलबिया पढ़ रहे हैं। बस ये सुनना था कि बुदैल वापस चला गया और कुरैश मक्का से कहने लगा तुम नाहक शोर व गौगा मचा रहे हो, मोहम्मद तो सिर्फ बैतुल्लाह की जियारत करने, उम्रा करने के लिए आए हैं, तुमसे लड़ थोड़ी रहे हैं जो तुम इतना परेशान हो रहे हो। लेकिन कुरैश के फितना पसंद लोगों ने इस बात को समझने के बजाय उल्टा लिया कि हम उनको बैतुल्लाह की जियारत के लिए भी नहीं आने देंगे, लेकिन इस तौर पर हम उनको वापस भेजेंगे और इस तौर पर गोया हम ही ये जंग जीतेंगे और मुसलमानों को इस तौर पर हम नाकाम करेंगे। इसके बाद कुरैश ने एक अपना दूसरा सफीर भेजा जिसे हलीस बिन अलकमा किनानी कहा जाता है। ये अहाबीश कबाइल का सरदार था। अभी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंचा भी नहीं था, बल्कि रास्ते से ही कुर्बानी के ऊँटों को देखा और ये उस कबीले से था जो कुर्बानी के ऊँटों की बड़ी ताज़ीम किया करते थे। लिहाजा ये देखकर वो वहीं से वापस चला गया और कुरैश से जाकर लड़ने वाले अंदाज में और लहजे में कहा कि तुम अजीब लोग हो, इधर उधर के सारे लोग आकर हज कर रहे हैं, उम्रा कर रहे हैं और हाशिम और अब्दुल मुत्तलिब का बेटे को तुमने रोका हुआ है। तो कुरैश ने कहा कि तुम देहाती आदमी हो, तुम्हें तो जंगी साजिशों का तदाबीर का कुछ पता नहीं है। अगर आज हम मुसलमानों को मक्का में दाखिल होने देंगे तो ये हमारी बड़ी बेइज्जती होगी, सब लोग कहेंगे कि कैसे वो तुम्हारे बजोर शमशीर मक्का में दाखिल हुआ और उम्रा वगैरह करके चला गया। लिहाजा तुम आराम से बैठो, हम किसी और सफीर का इंतखाब करेंगे जो बजोर शमशीर और ताकत के जोर पर उनसे बात करेगा। और इसकी तौर पर यह हो भी गया। इसके बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत फराश बिन उमैया खुज़ाई को
तगलब नामी ऊँट देकर कुरैश मक्का की तरफ रवाना किया कि बताओ भाई हम उम्रे के लिए आए हैं, लड़ाई वगैरह के लिए नहीं आए। लेकिन कुरैश ने उसके ऊँट को भी ज़बह कर दिया और उसको भी तकलीफ पहुंचाना शुरू कर दी, लेकिन वो बच बचा कर आ गए। इसके बाद कुरैश के खुद सर कुछ नौजवान आगे बढ़े, वादी में आए, मौका पाकर मुसलमानों पर हमला किया, लेकिन सहाबा किराम ने इनको गिरफ्तार कर लिया और सारे के ये लोग गिरफ्तार हो गए। और इनके इस इक़दाम का अंजाम ये हुआ कि ये सारे के सारे कैद में आ गए। लेकिन हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इन सब को रिहा कर दो, इनको कैद में ना रखो, हम अपना मकसद नहीं छोड़ेंगे, हम सिर्फ उम्रे के लिए आए हैं, यही पैगाम इनको जाना चाहिए। यूं मुसलमानों ने उन तमाम हमला आवरों को रिहा कर दिया और मुसलमान सिर्फ अपने मकसद में डटे रहे कि हमारा मकसद सिर्फ और सिर्फ उम्रा करना है, दूसरे किसी काम में हम मुदाखलत नहीं करना चाहते। और कुरैश मक्का की तरफ से होने वाले बारहा इक़दामात के बावजूद मुसलमानों ने अपना मामला नहीं छोड़ा। तो यहाँ जाकर अल्हम्दुलिल्लाह हमारा दर्स मुकम्मल हो जाता है। अगर आज के दर्स का हम खुलासा पढ़ें तो हमारे दर्स का उन्वान था ग़ज़वा हुदैबिया हिस्सा अव्वल। इस दर्स के अंदर हमने पढ़ा कि मुसलमानों की मक्का से जुदाई को 6 साल गुजर चुके थे और इस 6 साल दौरानी में उनकी मक्का मुकर्रमा की ज़ियारत और उम्रा और हज करने की तमन्ना अपनी इंतहा को पहुंच गई थी। इसी दौरान हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्वाब देखा कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने सहाबा के साथ मक्का गए हैं और उम्रा कर रहे हैं। फिर इस रवानगी की कुछ मुअय्यदात, कुछ ताईदी चीजें भी हमें वहां पर जिक्र की हैं सबक के अंदर। फिर हमने देखा कि मुसलमानों को देखकर मुशरिकीन किस तरह इश्तिआल में आए और उनका क्या रद्द अमल रहा। फिर उन्होंने अपने 2 सफीरों को भेजा और दोनों ने वापस जाकर मुसलमानों के हक में बात की, लेकिन कुरैश ने उनकी बात भी न मानी। फिर मुसलमानों पर कुरैश की तरफ से कुछ हमला भी हुआ और मुसलमानों ने हुस्न सलूक करते हुए उनके साथ माफी का मामला करते हुए उन्हें छोड़ दिया और ये बताया कि हमारा आमद का मकसद सिर्फ और सिर्फ उम्रा करना है, हम लड़ाई करना बिल्कुल भी नहीं चाहते। तो यहाँ जाकर हमारा पहला दर्स और दर्स का खुलासा मुकम्मल हो जाता है। अगले दर्स तक के लिए इजाजत दीजिए। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिक व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।